है वो चलने वाला है। सरकार का फोकस और मणिपुर बजट पर आज रहने वाला है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद। Sir, to implement this scheme, a national school quality assessment framework is prepared, and our ministry regularly looks at, reviews the status of implementation. Total of 35 PM Shri schools are there in Anakapalli, and 22 metrics, as per NEP, are regularly tracked. Honorable ministers, honorable MPs talked about physics lab, chemistry lab. I would like to inform them that 82% coverage is in this metric, and of course, if the state sends a proposal, a firm proposal, we will follow due process. श्री गुरजीत सिंह औजला। सर, मैं मंत्री साहब। Thank you, Honourable Speaker. Sir, I would like to know from the Honourable Minister that the border states, the condition of the schools is deplorable. Is the government coming up with any scheme like Amritsar is my district and there's so more schools may be included in this scheme? Is the government हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर कुछ समय तक ब्रेक थी, लेकिन आज से दूसरा सेशन फिर से शुरू हो चुका है। बजट सत्र का ये दूसरा चरण है और इसमें जाहिर सी बात है, पहले सत्र में हमने देखा था वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी, विरोध गतिरोध देखने को मिला था। जेपीसी की जो कमेटी बनाई गई थी उसने भी अपनी रिपोर्ट रखी थी। उसके बाद भी इस मामले में विरोध के सुर विपक्ष के जो वहां पर सदस्यगण बैठे हुए हैं उनकी तरफ से दिखाए गए थे और आज भी वो मुद्दा बड़ा बना रह सकता है। इसके अलावा मणिपुर के बजट पर भी फोकस किया जा सकता है और भी कई सारे मुद्दे हैं। सरकार एक तरफ से कोशिश करेगी इन बिलों को पारित किया जाए, जो वहां पर पेश होने वाले हैं उनको पूर्ण सहमति के साथ सामने लाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश रहेगी कि कोई भी जो ऐसा बिल हो जिस पर विपक्ष ने एतराज जताया है उसको सफलतापूर्वक रोका जा सके। शिफन, तो आज संसद सत्र की अगर बात की जाए तो इसका दूसरा चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है। सरकार का फोकस मणिपुर बजट पर रहेगा और साथ ही साथ वक्फ पर भी सरकार का सीधा फोकस होगा। आज मणिपुर का बजट पेश किया जाएगा और विपक्ष ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, तैयारी की है घेरने। Honorable Minister, what are the steps taken for the smooth implementation of PM Shri in our state of Andhra Pradesh to protect the students? Thank you. A total of 855 PM Shri schools have been recognized in the state of Andhra Pradesh. Honorable member has spoken about the pace of expenditure as per financial guidelines. Andhra Pradesh in year 24-25, total of 177 crores almost has been released. That's the center share that I'm talking about. Thank you. T. Sumati ji, Dr. T. Sumati. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, around 2,000 crores originally meant for Tamil Nadu for PM Shri have been diverted to other states due to the state's opposition to NEP 2020. Sir, through you, I would like to raise concern which has been expressed by our Chief Minister through M.K. Stalin that this is a death knell on cooperative federalism. And sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister also that is it right to use the financial allocation which is meant for actually spending the education, the school education children, is it right to use it as a revengeful tool against the state government, which is actually affecting the education of the school children? Sir, what is your question, Honourable Member? I would like to ask the union government through you, sir, that will it assure the parliament that no state will face fund cuts for rejecting a policy not mandated by law? Thank you, sir. Honourable Minister. Speaker, sir, today is 10th March. 20 more days are within March. The last date of the financial year of 2025 is up to 31st March. Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in
previous months. If they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PMCD. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more, Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM3. In Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. The same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends, they are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegation against Government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. They are devouring the right of Tamil Nadu students to have a pan-Indian education model. Government of India is ready and open. Let them come back. What they have promised. I can quote the date. On 15th March. 15th March, they are sent a MOU. Why that account? Let the tell. Why that account? My information, their chief minister was ready to accept that. Some super chief minister, some new person came up. My dear sister Kani Modi is here. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. She only came to me with few friends. He's the education minister, their education minister came to us. They are dishonest. This is unfortunate. It's unfortunate in democracy. They are trying to cover up their failure. They are trying to do politics. This is unfortunate, sir. Question number 142. Dr. Nalin Soren. Okay. Dr. Nalin Soren. Question number Nalin Soren. और question. माननीय संस्कृति मंत्री से पूछना. Honorable Speaker, sir, I would like to know from the Honorable Minister of Culture and Tourism that there are a lot of तो ये तस्वीरें आपको लोकसभा से लाइव दिखा रहे थे, जहां पर कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है और विपक्ष ने लगातार एक प्लानिंग कर रखी है, एक रणनीति बनाई गई है सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल प्रश्नकाल चल रहा है। तमाम जो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो एक एक करके अपने प्रश्न रख रहे हैं, जो उनकी क्वायरीज है वो रख रहे हैं और जो सत्ता पक्ष है वो लगातार जवाब देता नजर आ रहा है। देखिए 4 अप्रैल तक ये बजट सत्र चलना है, इसका दूसरा सेशन चलना है। बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे सेशन में कैसे चर्चा होगी। जो सदस्यगण वहाँ पर हैं, अपने क्षेत्रों को, इन मुद्दों को लेकर वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो अपने मुद्दे कैसे रखेंगे। ताबिश कमाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। ताबिश, एक बार फिर से संसद का जो बजट सत्र है वो आज से शुरू हुआ है, इसका दूसरा सेशन है, दूसरा पड़ाव है। जाहिर सी बात है सबकी नजरें इस सेशन पर रहेंगी और खास तौर पर सरकार उस कोशिश में लगी है जो बिल सरकार ने सोचे हैं उनको सफलतापूर्वक पेश भी किया जाए और सहमति से सदन से पारित भी किया जाए। ऐसे कौन से बिल हैं जिस पर सरकार का फोकस रहना है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर विपक्ष जो है वो उन्हें पकड़े रखा है?
शीतल, देखिए जिस तरह से विपक्ष की तरफ से कल ही मूड साफ हो गया था कि कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार चर्चा करना चाहता है और उन मुद्दों पर वो खामोश नहीं रहना चाहता है। आज सुबह से लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके बेटे के घर रेड चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि ये रेड एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पड़वाई गई है जिससे मुद्दों से बचा जा सके। हालांकि विपक्ष ने अपनी भूमिका साफ कर दी है कि हम आप रेड डलवाएं या किसी भी एजेंसी का इस्तेमाल करें, हम बिल्कुल अपने मुद्दों से नहीं भटकने वाला है। हालांकि सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त विपक्ष लेकर के सामने आने वाला है वो मणिपुर का था। मणिपुर को लेकर के विपक्ष की तरफ से लगातार प्रहार सरकार पर किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी नोटिस दिया जिसमें अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने सवालिया निशान सरकार पर खड़े किए हैं। इसी तरह से जातीय जनगणना से जुड़े मुद्दों को लेकर के महाकुंभ और तमाम जो इश्यूज है, चाहे वो किसानों का इश्यूज हो, इन तमाम इश्यूज को लेकर के लगातार अपोजिशन की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सत्ता की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि संसद का जो दूसरा चरण है ये चल सके और कई जो अहम बिल है, लगभग ऐसे 36 बिल हैं जिन पर सरकार उनको पेश करके उनको पारित कराना चाहती है। हालांकि सबसे अहम वक्फ बोर्ड है जिसको लेकर के चुनौतियां सरकार के सामने हैं। तो ये तमाम जो चुनौतियां सरकार के सामने हैं उनसे सरकार को निपटना होगा। हालांकि संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम विपक्ष के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो अहम बिलों पर बातचीत बन सकती है और सुचारू रूप से कदम चल सकता है। लेकिन लगातार जिस तरह से हमने पहले दिन ही विपक्ष का मुंह देख लिया है, विपक्ष खामोशी के साथ सब कुछ कहने वाला नहीं है, बल्कि सत्र में लगातार हंगामा हमें देखने के लिए मिल सकता है। आज पहला दिन था और आज पहले ही दिन विपक्ष ने अपनी स्पष्ट कर दी है कि तमाम जो इश्यूज हैं, चाहे वो पिछले सत्र में बीच में लटक गए हैं, उनको आगे लेकर के हो जाएंगे और उन पर वो चर्चा चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट हो चुका है कि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से खामोश बैठने वाले नहीं है। तमाम ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताबिश कमाल हमारे साथ इस वक्त बने हुए थे। तो चलिए इसी बीच अब बात जम्मू कश्मीर की होगी। वहां पर भी लगातार विधानसभा सत्र की कार्रवाई चल रही है और जम्मू कश्मीर में ये कार्रवाई अभी भी फिलहाल जारी है। विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष के जो तमाम एमएलएज हैं वो लगातार हंगामा काटते नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रही है। तो आपको बता दें अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा हो रहा है। कठुआ की बात की जाए या फिर अगर हम गुलमर्ग में जो फैशन शो होने जा रहा है उसकी बात करें, ये तमाम वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार जो यहाँ पर विधानसभा सत्र है उसमें कार्रवाई देखने को मिल रही है और हंगामा जो विपक्ष है वो लगातार उठा रहे हैं, चाहे वो एमएलएज हैं या फिर वो सत्ता पक्ष के कुछ नेता हैं। लगातार आमने सामने उनकी भिड़ंत होती नजर आ रही है और वार पलटवार का दौर अभी फिलहाल विधानसभा सत्र में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए कब वीकेंड के बाद नई उम्मीदों के साथ, नई उम्मीद की किरण के साथ ये बजट सत्र एक बार फिर से आज से इसका आगाज हुआ है और सुबह जैसे ही आज के दिन का शुरुआत हुई वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से कठुआ के मुद्दे को उठाया, सरकार को घेरा, कहा कि भाई ये कैसे कठुआ में इतनी बड़ी घटना निकलकर सामने आई। 3 लोग जो हैं जिनकी मृत्यु हुई है और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि किन वजहों से, किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद अगली बारी जब पीडीपी की आई तो पीडीपी के विधायक उठे, उन्होंने फैशन शो को लेकर सवाल उठाए जो हो चुका है और उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, उस पर भी सरकार ने जवाब दिया। उसके बाद जब प्रश्नकाल चला तो आज स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे उठाए गए। किश्तवाड़ से विधायक जो शगुन परिहार हैं उन्होंने भी स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सवाल पूछे। उन्होंने किश्तवाड़ में अस्पताल को लेकर सवाल पूछे, कितने बेडेड अस्पताल हैं और कितना इसको बढ़ाया जाएगा, इसके दायरे को कितना बढ़ाया जा सकता है, या फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, एक्सीडेंटल इमरजेंसीज होती हैं, उस समय में कितने डॉक्टर्स वहां पर तैनात हैं, कितना स्टाफ वहां पर मौजूद है, कितना पैरामेडिकल का स्टाफ है, कितने बाकी अन्य स्टाफ हैं जो वहां पर जो फर्स्ट एड का काम या जो जिस भी प्रकार की इमरजेंसी होती है उसमें काम आए, उसको लेकर सवाल पूछे। तो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सीधा कहा गया कि आने वाले समय में इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी और खुद हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कई बार ये जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्वास्थ्य विभाग में अभी भी खामियां हैं, उनको दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन अब जबकि सरकार काफी देर के बाद बनी है
तो सरकार बनने के बाद जब पॉपुलर गवर्नमेंट बनती है तो उसके बाद ही आम लोगों के हित में काम होना शुरू होता है। तो अब फिलहाल ये मामला चल रहा है, हंगामा भी आज जमकर देखा गया है। बिल्कुल, लेकिन शीतल यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, जहाँ पर ये पूरा मामला जो कठुआ में गरमाता जा रहा है उस पर एमएलए बनी जो है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उन्होंने कठुआ में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उन पर हमला किया। उन्होंने इस मसले को असेंबली में उठाया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जवानों की शहादत हो, मक्खन दीन का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की है। लेकिन अब ये सीधी कार्रवाई, हंगामे की तस्वीरें सीधे आपको विधानसभा सत्र से लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए, पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोले बोले मैंने जो सड़क के आदत लिया है, जो सड़क कोई नहीं इजाजत दे देगा, कोई इजाजत नहीं देगा। बात करने का पाकिस्तान मैंने मांगा है डिस्कशन ऑन सेफगार्ड रिलीफ एंड लीगल रिलीफ फॉर विक्टिम्स। मैंने कभी होम नहीं लाया। इस हाउस में कालीबाई साहब ने कहा should express solidarity with those other guys. उसके लिए बिलावल में जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए, उससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। की तरफ से, साउथ की तरफ से उनकी रवायती को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इससे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इससे भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए। क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है, कल शायद एलओटी साहब भी मौके पर गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था।
इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने Please welcome Rashi and Samarth Narang, co-founders of मैंने सुनो ना मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, सुनो शफीक साहब, आप तशरीफ रखें, इनसे क्या कह रहे हो, मेरे से बात करो, आप मुझे एड्रेस करो, आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें, आप इनकी तरफ क्या देख रहे हो, आप मुझे एड्रेस करो ना, मेरी तरफ सुनो, तशरीफ रखें आप नीचे, बैठे ना नीचे, आप बैठे नीचे। लेकिन इसी बीच में तमाम पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार हंगामा काट रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर 11वीं बार बजट पेश किया जाएगा अजीत पवार द्वारा, और 11वीं बार बजट पेश करने वाले दूसरे वित्त मंत्री अजीत पवार बनने जा रहे हैं। शुक्रवार को ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था और आज ये बजट 11वीं बार अजीत पवार पेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए आज महायुति सरकार द्वारा बजट पेश करने जा रही है। 11वीं बार बजट पेश करेंगे अजित पवार, दूसरे ऐसे वित्त मंत्री बनेंगे जो 11वीं बार बजट पेश करेंगे और दूसरे ऐसे वित्त मंत्री बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। शुक्रवार को पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण, यानी जो वीकेंड है उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है एक पूरे राज्य को लेकर, अर्थव्यवस्था के ढांचे को भापा जाता है, उसका आकलन किया जाता है। हर वर्ष ये आंकड़े निकलकर सामने आते हैं कि राज्य में किस तरह की इस वक्त जो आर्थिक ढांचा है वो नजर आ रहा है, आगे क्या होगा, किस दिशा में पूरा महाराष्ट्र जा रहा है, कितनी इनकम आ रही है, कितना एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से किया जा रहा है और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम चीजें होती हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। लेकिन उसके बाद आज जब बजट पेश होगा तो बजट से महाराष्ट्र की दिशा दशा तय होगी। उस अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कैसे बजट को पहुंचाया जाए और बजट में रखे लाभों को पहुंचाया जाए, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को पार पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से तैयार भी नजर आ रही है। शिफन, तो ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र से खबरें सामने आ रही है। महायुति सरकार आज अपना बजट पेश करेगी और बीते शुक्रवार को यहाँ पर अगर बात की जाए इकोनॉमिक सर्वे की, जो कि एक प्रथा है, हमेशा बजट पेश करने के कुछ दिन पहले एक इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है जिसमें कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मापा जाता है, किस तरीके से तमाम चीजें पूरे राज्य में देखने को मिलती हैं, रेवेन्यू की बात की जाए या फिर इकोनॉमी की बात की जाए, तो ये तमाम चीजें सामने रखी जाती हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में। लेकिन आज 11वीं बार अजीत पवार बजट पेश करेंगे और दूसरे वित्त मंत्री बन जाएंगे जो कि 11वीं बार महाराष्ट्र का ये बजट पेश किया जाएगा। और शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, जिसके बाद आज बजट पेश किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां पर आज ईडी की रेड देखने को मिली है। ईडी ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के अंदर रेड की है और उसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर रेड का मामला सामने आया है। अब घेर लिया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रेड की रडार पे आ चुके हैं और ईडी की रडार पे आ चुके हैं। उनके घर पर, उनके जो अलग अलग जगहें हैं उन पर छापेमारी की गई है। भूपेश बघेल ने इस रेड को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े किए। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की रेड देखने को मिल रही है और 15 अलग अलग जगहों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर रेड हो रही है। भूपेश बघेल ने रेड पर कई तरीके के सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर ईडी की रेड है और 15 अलग अलग ऐसी जगहें हैं जहां पर लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी पर नेता ने कह दिया है कि उन्होंने कई तरीके के सवाल उठाए हैं, उन्होंने विपक्ष पर प्रहार भी किया है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ पे अलग अलग मौकों पर ईडी की तरफ से रेड की गई है। इससे पहले भी कई बार ईडी ने वहां पर जाकर रेड की है और अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी रडार पर, उनके निशाने पर हैं। ईडी ने ये रेड की है, 15 ठिकाने बताए जा रहे हैं, 15 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है और इसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं। शंभू राही संवाददाता रायपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंभू, पूरी जानकारी बताइएगा डिटेल में, कहां से ये रेड शुरू हुई और अभी क्या फिलहाल वहां पर सिचुएशन नजर आ रही है? बिल्कुल सभी से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी का आज छापा पड़ा है और छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी बड़े कांग्रेस नेता के ऊपर में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। ये मामला कई
कई लेकर के है, जैसे संपर्क कि सही से नहीं हो पा रहा है। दोबारा से शंभू से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर को लेकर पूरी जानकारी भी पहुंचाएंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर रेड हुई है। अब इस रेड के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, इसका अंजाम क्या होगा, जब रेड होगी तो क्या कुछ ईडी के हाथ में लगेगा, क्या वाकई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो छापेमारी वहां पर हुई है, 15 जगहों पर जो छापेमारी की गई है, उसको लेकर कुछ मिलेगा या फिर खाली हाथ ही ईडी को लौटना पड़ेगा। तो चलिए अब इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे कठुआ के हवाले से। जम्मू कश्मीर का ये एक ऐसा जिला है, लगातार चर्चाओं का विषय बना है। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और 1 महीने के भीतर 7 लोग लापता हो चुके हैं। 3 लोगों के शव मिलने के बाद हड़कंप मच चुका है और ये पूरा मामला सड़कों से लेकर विधानसभा सत्र के दौरान भी इस पर हंगामा देखा गया। लेकिन ये काफी बुरी खबर सामने आ रही थी जब 3 लोग शादी समारोह में यहाँ पर शामिल होने के लिए जाते हैं और 3 लोग जो है वो गायब हो जाते हैं। एक 15 साल का छोटा बच्चा, एक 30 साल का युवा और एक 40 साल का व्यक्ति, ये 3 लोग गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद इनकी बॉडीज एक नाले से प्राप्त होती हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ये ईशू नाला है, लोहाई मल्हार ये इलाका है, ऊपरी इलाका है, पहाड़ी इलाके के अंदर से एक वाटरफॉल, एक नाले के अंदर से इन 3 व्यक्तियों की जो लाशें हैं वो बरामद होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर चर्चाओं का विषय इसलिए भी है क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर 7 अलग अलग जगहों से कठुआ जिले से लोग लापता हुए हैं। 7 लोग जो हैं वो लापता हुए हैं, जिनमें से 3 के शव बरामद करने के बाद हड़कंप पूरे इलाके में मच चुका है। बिल्कुल, देखिए कठुआ में इस तरह की घटनाएं निरंतर रूप से सामने आ रही हैं। ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं। एक इस वक्त की ताज़ा घटना है जिनके 3 लोगों के शव कल ही बरामद किए गए हैं और ये 3 दिन पहले गायब हुए थे। एक बारात के समय वो वहाँ से गायब हुए और अचानक गायब होने के बाद जब सूचना पुलिस तक पहुँची और सुरक्षा कर्मियों तक पहुँची तो उन्होंने फिर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। संयुक्त रूप से पुलिस हो या फिर सेना के जवान हो, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और ड्रोन के माध्यम से इसको वो सर्च कर पाए। रंजीव मेहता लाइव हमारे साथ कठुआ से हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रंजीव, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, चर्चा का विषय बन गया है और जिन 3 लोगों की जो शव बरामद किए गए हैं कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है, किस वजह से हुई है। आज दूसरा दिन है जांच का, क्योंकि शव कल ही मिल गए थे, जांच उसके बाद शुरू कर दी थी। अब क्या किस दिशा में ये जांच जा रही है और प्रथम दृष्टिया क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए शीतल, अभी तक जो 3 लोग बिलावर के इलाके में गुमशुदगी के बाद जिनका बारात से गुमशुदगी हुई और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज एक नाले में मिली, जंगल के उसी रास्ते से मिली जंगल में और करीब 7 किलोमीटर दूरी पर मिली और उसके मौत का रहस्य जो अभी तक बना हुआ है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ये एक आतंकी घटना हो सकती है क्योंकि 16 फरवरी को भी कोक गांव है बिलावर का, वहां पर भी 2 लोग जंगल में सब्जी लेने गए थे तो उनकी भी डेड बॉडी दूसरे दिन करीब 10 किलोमीटर दूरी पर मिली थी जिनको गला घोट कर मारा गया था। तो इस तरह की घटनाओं के बाद अब एक और मामला जो कठुआ जिले में सामने आया, वहां पर 2 नाबालिग पिछले 10 दिनों से गायब हैं। 27 फरवरी को वह लोग अपने रायबाग थाना के गांव हरदो मुट्ठी और करंडी कला, ये 2 गांव है, आसपास के गांव है और यहाँ के दोनों बच्चे जो है, एक 12 वर्षीय रहमत अली और 3 मोहम्मद जो जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है, ये लोग अपनी बाल मवेशी चराने निकले थे। लेकिन रंजीव, एक काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पर सवाल ये भी उठता है क्योंकि जो MLA बनी है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने वहां पर जाने की कोशिश की, बिलावर में लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, सांत्वना पेश करने की कोशिश की, तो उन पर हमला हुआ। ये हमला कितना सही है, सरकार इस पर भी जवाब दे। तो इस तरीके की बातें करना कितना सही है विधानसभा सत्र के दौरान, जब उन्हें श्रद्धांजलि पेश करनी चाहिए, जब जांच होनी चाहिए, जब असली कातिलों का पता लगाना चाहिए, तब इस तरीके की बातें करना कितना सही है?
बिल्कुल शिपन, आपको बताऊं क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर उस दौरान भी वहां पर गए थे, उस दौरान भी बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाया था जब मक्खन दीन ने खुदकुशी की थी, और उस दौरान भी पुलिस पर काफी आरोप लगाए थे मारपीट के और यातनाएं देने के, और यातनाओं से उसकी मौत हुई है, ये कहना था बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह का। और उसके बाद अब जब वह कल परसों देर रात को जब बिलावर के अस्पताल में जाने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद जो स्थानीय लोग थे उन्होंने सीधे आरोप लगाए कि वह लोग राजनीति कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग आए हैं उनके साथ, क्योंकि वह लोग उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो इसी के चलते उनके साथ हाथापाई की कोशिश भी हुई, वहां पर एक झड़प हुई छोटी सी, जिसके बाद वहां से विधायक डॉक्टर रामेश्वर को वापस जाना पड़ा, और रात के अंधेरे में ही ये वहां पहुंचे थे। तो लोगों ने काफी विरोध किया है उनका, जो बिलावर के लोग हैं उनका कहना है कि अगर आप बनी के विधायक हैं तो बिलावर में आकर राजनीति कर रहे हैं कहीं। लेकिन रंजीत, एक और जो बड़ा सवाल पनप रहा है, मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के हर नागरिक में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर बार बार जब घटनाएं सामने आ रही हैं, पहले भी एक ऐसी घटना हो चुकी है, तो उसके बाद क्या सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जा सकता था, या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन ला जा सकती थी जिससे आने वाले समय में ऐसी दोबारा से घटना ना हो? क्या इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं कठुआ के अंदर? देखिए शीतल, सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा जब से सितंबर महीने में जब सेना के काफिले पर हमला हुआ था, 5 जवान शहीद हुए थे इसी बिदनौता इलाके में, बिलावर का अपर रीचिस का एरिया है ये भी, वहां पर सेना की नए कैंप स्थापित किए गए थे। एसओजी का ऑपरेशन जो पुलिस की ऑपरेशन टीम है उसके एक एसएसपी को वहां पे तैनात किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं घट रही हैं। तो लाजमी है कि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बलों पर जो उस इलाके में तैनात है वहां पर किस तरह का जो कड़ी सुरक्षा है या क्या वहां पे है, क्योंकि दूर दराज का और पहाड़ी इलाका है, लेकिन उसके ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान मांग भी की थी कि एसओजी के ऑपरेशन ऑफिसर को भी हटाया जाए और मल्हार के थाना प्रभारी को भी हटाया जाए, क्योंकि उनकी तरफ से भी काफी ढिलाई बरती गई है। ये आरोप प्रदर्शनकारी लोगों के थे और जो परिजन। लेकिन रंजीव, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है, क्योंकि टीम गठित की गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए, अब वो टीम किस तरीके से काम कर रही है और ये जांच आखिरकार कहां तक पहुंची? क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, सिर्फ कठुआ ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। महबूबा मुफ्ती है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, यानी कि चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, लगातार इस मामले पर चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या लगता है कि पुलिस जांच ये कहां तक पहुंची है अभी फिलहाल? देखिए शिपन, जांच को लेकर अभी क्योंकि कल ही टीम गठित की गई है, जिसके चलते टीम ने आज संस्कार है उनका, अभी थोड़ी देर बाद संस्कार होने वाला है। जो तीनों डेड बॉडीज मिली थी उन लोगों की, तो वहां के बाद पुलिस अपना काम, जो जांच कमेटी है वो अपना काम करेगी, पूरे इलाके में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। रंजीव, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, उनकी फैमिलीज की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए, उनकी सरकार से और कोई डिमांड नहीं है, ना ही कोई मुआवजा चाहिए, ना ही उन्हें कुछ चाहिए, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि 3 व्यक्ति जो गायब हुए थे, जिनके शव बरामद हुए हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चिपन, उन्होंने उनकी फैमिली के लोगों का सीधा सवाल है कि आखिर एक 35 लोगों का ग्रुप जा रहा है, तो 3 लोग पीछे रह जाते हैं बारात के दौरान, तो उनकी मौत और 5 दिन तक वो लोग कहाँ रहे? तो जब 5वें दिन जाकर उनकी बॉडीज मिलती हैं, तो एक सवाल तो लाजमी खड़ा होना है। परिवार के लोगों को उनकी सुरक्षा की चिंता हर किसी को रहती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से परिवार के लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, मुआवजे की बात जो बात की है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। ठीक है, जांच होनी चाहिए, इंसाफ भी मिलना चाहिए, लेकिन अब सिक्योरिटी एजेंसीज को सतर्क भी रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है, चिंताजनक विषय है, और इसमें तंत्र को अब मजबूत होना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना घटें, क्योंकि अगर ये आतंकवादियों द्वारा प्रेरित ये पूरा हादसा या घटना है तो जाहिर सी बात है आतंकवाद में एक नया जो रास्ता है वो खोजा है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, लखनऊ में चंद्रशेखर समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। राजभवन मार्ग पर जुटे पार्टी नेता और कार्यकर्ता। देखिए लखनऊ में ये प्रदर्शन, चंद्रशेखर के समर्थकों का ये प्रदर्शन नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है ताकि
माहौल खराब ना हो। तो ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर चंद्रशेखर के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। पूरा मुद्दा क्या है, मामला क्या है, वो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल परिवर्तन चौक पर आजाद समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दे, अलग अलग मांगे, अलग अलग चीजों को लेकर प्रदर्शन। लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, इलाके में निगरानी बढ़ाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है पूरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लखनऊ में किसी एक व्यक्ति के समर्थन में एक पार्टी जो है, वो चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष है, चाहे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी आयु वर्ग के लोग सड़कों पर हैं। और ये एक काफिला आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर बैठा हुआ है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो आपको बता दें कि पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कोई माहौल खराब ना हो और तमाम चीजें यहाँ पर सामने है। उमेश मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। उमेश, पूरी जानकारी दीजिएगा, जो समर्थक उतरे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, मांगे कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, क्या मांगे हैं इनकी, किस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे हैं ये? उमेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौराहे से वो राजभवन, इसी राजभवन के मार्ग पे राजभवन तक वो जाना चाह रहे थे। हालांकि उनके समर्थकों को कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा परिवर्तन चौक से हटा दिया गया है और ये राजभवन का जो मार्ग है वो लोग जो कार्यकर्ता हैं चंद्रशेखर रावण के, उनका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से उनका प्रदर्शन है और राजभवन में ज्ञापन सौंपने की बात थी। हालांकि जो चंद्रशेखर रावण के जो कार्यकर्ता हैं वो परिवर्तन चौक पे जरूर इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनको प्रशासन ने वहां से हटा दिया है। और देखिए कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है इस राजभवन वाले और विधानसभा मार्ग पर जाने वाले रास्तों पर। हर जगह पर कानून व्यवस्था के लिहाज से जो पुलिसकर्मी हैं वो चौराहों पे मुस्तैद हैं, वो ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। पुलिस की जो गाड़ियां हैं, पीएसी की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। यानी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो पुलिस बल है वो पूरी तरह से अलर्ट है और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के जो कार्यकर्ता हैं उनकी निगरानी की जा रही है कि कहीं पे भी आम जनमानस के लिए असुविधा का कारण इनका प्रदर्शन ना बने। इसको लेकर लगातार अधिकारियों द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकीद की जा रही है। जिन वजह से इनको सड़कों पर आना पड़ा है और भारी तादाद में यह संख्या भी नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सड़कों पे कानून व्यवस्था है, तमाम अन्य मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जो आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर रावण के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जिस तरह से चंद्रशेखर रावण कई बार देखे गए हैं कि तमाम आयोजनों में कि वो जिस तरह से आक्रामक नजर आते हैं मुद्दों को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब वो अपनी पैठ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण भी बैठने वाले नहीं हैं। अगर चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या किसानों की बात हो या तमाम अन्य जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे हैं। तो लाजमी है कि अपनी आमदनी दर्ज कराना चाहते हैं चंद्रशेखर रावण और जनता के बीच ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी भी पार्टी, ये बुनियादी ईंट रखी जा रही है 2027 के चुनाव को लेकर। देखिए, इसमें दो राय नहीं, बल्कि जो कहीं ना कहीं 2027 की जो रणनीति है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के जो कार्यकर्ता हैं राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से जब से वो सांसद बने हैं लगातार उनका मूवमेंट देखा जा रहा है, उनके जो सम्मेलन हो रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं की जो मौजूदगी हो रही है, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण भी अहम भूमिका अपनी मानते हैं और आने वाले समय में जो दलित वोट बैंक है उस पर उनकी खासी पकड़ देखी जा रही है। लगातार उनके कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं वो एक्टिव हो रहे हैं।
चाहे वो प्रशासन की कोई हिला हवाली हो या कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे हों, हर मुद्दों पे कहीं न कहीं चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता अपनी आमद दर्ज करा रहे हैं। उमेश हवारसद बने हुए थे, इस वक्त लखनऊ से जानकारी दे रहे थे, क्योंकि चंद्रशेखर के समर्थकों ने वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया है। जाहिर सी बात है 2027 में चुनाव है और चुनाव से पहले अब ये सियासी अलख जगाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अब वो खबर आपको बताएंगे जिस खबर को शायद आप अगले कई दिनों तक भूल पाएंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा किया है और कल पूरी रात दुबई में जहां एक तरह का जश्न मनाया गया, तो वहीं भारत भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि भारतीय टीम ने ही दुबई में न्यूजीलैंड को 25 सालों के बाद वही बदला लिया जो न्यूजीलैंड ने 2000 में भारतीय टीम को हराया था। ये वही चैंपियंस ट्रॉफी थी जब भारत को हराया था फाइनल में, और आज उसका बदला पूरा हो गया। दुबई में भारत ने ट्रॉफी उठाकर ये बता दिया कि भारतीय टीम इस वक्त न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, सबसे फेवरेट टीम है। और इसमें से जो कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है, बल्ले से जगाया है, गेंद से छकाया है, ये तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त भारतीय टीम में नजर आ रहे हैं। शिफन, तो बिल्कुल आपको बता दें कि इंडिया के जो समर्थक हैं वो अलग अलग राज्यों में सड़कों पर उतरे और अलग अलग तरीके से जश्न मनाया गया। तस्वीरें कुछ इस तरीके की थी शीतल कि लोग दिवाली, होली और ईद एक ही दिन मना रहे हैं। 9 मार्च को दिवाली मनाई गई पूरे भारतवर्ष में, होली मनाई गई, रंगों के गुलाल हमने देखे उड़ते हुए, और साथ ही साथ ईद का पर्व जिसको कि अभी कुछ दिन शेष है लेकिन वो भी कल ही के दिन मनाई गई। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समैनशिप के तरीके से अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छा माहौल पूरे भारतवर्ष में, दुबई में, और जहां पर भी भारत इंडियन क्रिकेट टीम के जो समर्थक हैं देश के किसी भी कोने में है, विश्व के किसी भी कोने में है, वहां पर लगातार जश्न का माहौल। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच कल चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई पेश की। सिर्फ मोदी नहीं, सभी समस्त देशवासियों ने, और इंडिया के कहीं भी समर्थक विश्व भर में हैं, उन्होंने भी देशवासियों को और इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई पेश की। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे और हिटमैन रोहित शर्मा ने कल एक बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए इंडिया को मैच जिताने की और जो है वो इस राह पर ले गए। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए वहां की, तो काफी अच्छी तस्वीरें पूरे भारतवर्ष से निकलकर सामने आई। बिल्कुल, देखिए उम्मीद है कि आगे भी भारतीय टीम इसी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़े और आने वाले समय में जो भी बड़े टूर्नामेंट्स हों या फिर बायलैटरल सीरीज हों वो भी भारत अपने नाम करे। न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।